Our invited speaker is Dr. Yasir Kazi sir. He has 10 years of experience, he has more than 10 publications, he is an alumni of Alana College and he specializes in molecular docking. He has also been awarded his PhD in chemistry. So molecular docking is very important in today's research, as molecular docking helps us predict a molecule's activity by binding it with different proteins. So molecular docking is often used as a final step before we proceed to in vivo or in vitro research. So it also helps us save a lot of money, which we go through in vivo if we try to experiment things. So I would like Dr. Mokle sir to felicitate our speaker with a bouquet of flowers. Good morning to all of you, respected teachers and dear students. Today I am very happy to share my some knowledge, and you will be amazed after watching this session that it will be a nice value addition in your docking life. Okay, so today we have a session over molecular docking, an innovative tool for drug discovery. Okay, so we will directly start this session. Okay, without wasting any time. So there is one question: how is a drug developed? How is a drug developed? So actually it is having certain answers written over this slide. So drug discovery, drug development is actually a very tedious process. If you see, यहाँ पर बहुत सारे problems होने वाले हैं during drug discovery development. That's why we do not have any patent in India. We do not have any new molecule. Okay, why? Because it can take around 10 to 15 years of work, then around $500 million. Okay. So a lot of expenditure while designing a new compound. Okay. Now see this diagram, and you will realize that this is the process of making a new drug. The process starts with identification of a disease. For example, in the case of COVID-19, what is the basic problem? The basic problem is coronavirus. Okay. So identification of target is coronavirus, COVID-19. Okay. Then after that, isolation of protein molecule, it takes around 2 to 5 years. Okay. After that, finding a new drug, so we have to perform virtual screening or screening of lot of compounds. Okay, it take around 2 to 5 years. Then after this preparation of these drugs, we have to go for preclinical studies. It again takes around 1 to 3 years. Then we have to file IND. What is IND? Investigational new drug application. Okay, and after permission of this IND, after getting properly recognized or permitted by IND, we are going to carry on the human clinical trials or clinical trials. Okay, it again takes around 2 to 10 years, around 2 to 10 years, and finally we can able to file the NDA, means new drug application. So this is a very lengthy process of around 10 to 15 years, 20 years. Lot of expenditure. Now with the help of this computer aided drug delivery drug design selection था, तो वहाँ पर हम लोग we can more precisely identify new targets. कौन से targets हम लोग specifically यहाँ पर देख लेंगे? Cellular target 5000 हम लोग को lead molecules identify करने होते हैं, उसमें से fit करते हैं ना, तो यहाँ पर screening बहुत simple होने वाली है. With the aid of this drug design method, this last step. Animal testing is a very tedious process. Lot of permissions हम लोग को लगती है, यहाँ पर approvals हम लोग को लगते हैं, और student के काम की चीज नहीं है. यहाँ पर जाए बारो permissions ले, within this short span of time हम लोग ये. What do you mean by in vivo studies? What do you mean by in vivo studies? Anyone? Randomly anyone? Any student? What do you mean by in vivo studies? Society animal study which is carrying on. Society animal. What is in vitro? It's very obvious कि हम लोग क्या करें? Before going for in vitro, before going for in vivo, why not to go for? बैठे कंप्यूटर पे जब ये लोग studies, it will minimizes your time, it will increases your accuracy. यहाँ पर hit generation ज़्यादा होंगे, आपको बहुत सारे optimization parameters मिल जाएंगे पहले. उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? एक प्रॉब्लम हम लोग रीड लो एट दिस पॉइंट, एक एरर हमारे यहाँ पर मिनिमाइज हो रहा है. हम लोग को पहले ही मालूम पड़ जा रहा है कि इट विल गिव अस 70 to 80% एक टारगेट. सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि एक प्रॉब्लम हो जाए कि यार मैं जो सिंथेसिस कर रहा हूँ, ये बॉडी में मैं जो सोच रहा हूँ कि एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी मिलना चाहिए, मिलने वाली नहीं मिलती.
बीच में हमेशा हम लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है. फर्स्ट वन हियर इज स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन एंड सेकंड वन इज लिगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइन. फर्स्ट वाले मेथड में हम लोग को मालूम होगा कि प्रोटीन्स ऑलरेडी डेवलप्ड है. आप ढूंढने बैठोगे आरबीएसपी जो डेटा फाइल होती है, हमारा ड्रग बैंक जो होता है और प्रोटीन डेटा बैंक जो होता है, वहां पर आप लोग को प्रोटीन स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं. लेट्स सपोज कि हम लोग बोलते कोविड-19 का एक डेटाबेस ऑलरेडी रेडी होगा. ओके, आपको करना क्या रहेगा? अगर आपने ड्रग डिजाइन किए हुए हैं तो आपको जाके उसको हिट करना होगा, डॉकिंग करनी होगी. ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन. लिगैंड हम लोग को मालूम नहीं है, टारगेट हम लोग को ऑलरेडी पता है और वो अवेलेबल भी है. ओके, सेकंड मेथड हियर इज लिगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइन. यहाँ पर हम लोग को ये चीज नहीं पता है कि टारगेट है. फॉर एग्जांपल कोविड-19 का टारगेट डेवलप ही नहीं हुआ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड्स हम लोग कुछ ना कुछ टारगेट्स यहाँ पर बना सकते हैं खुद से. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलॉजी मॉडलिंग बोलते हैं, या तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? लिगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइन. दीज आर द टू अप्रोचेस. इन आवर फार्मेसी हम लोग क्या करते हैं, फार्म स्टूडेंट्स, वी आर मोर प्रिसाइज और वी आर गोइंग टू डू स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन. सिंपल हम लोग ये चीज करनी है, ज्यादा अंदर जाना नहीं है. ओके, नाउ इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन, ये जो प्रोटीन डेटाबेसेस हम लोग को मिलते हैं नेट पर, ये कहां से आइडेंटिफाई होती है? कौन इसको करता है? तो यहाँ पर कुछ मेथड्स है जो यूज होते हैं इन लोग को डिराइव करने के लिए. ओके, व्हाट आर दिस मेथड्स? फर्स्ट वन हियर इज एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी एंड सेकंड वन इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. एनएमआर से हम लोग को 3D स्ट्रक्चर्स मिल जाती है और एक्स-रे से हम लोग को प्रॉपर उसका शेप, आइडेंटिफिकेशन, हर चीज हम लोग को उससे मिल जाता है. आइए बात समझिए, दो मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल है. यू कैन सी दिस इमेज. This is the image, first one of X-ray crystallography, second one is NMR spectroscopy. अब third method is that कि प्रोटीन का डेटा ही नहीं है हमारे पास में. ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? We are going to develop the target on the basis of ligands. होमोलॉजी मॉडलिंग के जरिए हम लोग कुछ ना कुछ करके एक बना लेंगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर. आ रही बात समझ में? तीन मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल. स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारे मेन पॉइंट की, डेट इज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन में रिसेप्टर पता है, डॉकिंग करनी है, लिगैंड्स लेके आने हैं और उस पर डॉक करना है. ओके, सो व्हाट इज एग्जैक्टली अ डॉकिंग प्रोसेस? व्हाट इज डॉकिंग? डॉकिंग इज एक्चुअली फाइंडिंग व्हाट मैचिंग ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स. कि हम लोग के पास में एक छोटा मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, लिगैंड है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, एंड वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल एंड. तो बॉडी में हम लोग ड्रग ले रहे हैं एस्पिरिन, हम लोग को ये डर है कि यार बॉडी में कहां पे जाके हिट करेंगी. अब एस्पिरिन को छोड़ दो, आपने नया कंपाउंड सिंथेसाइज किया है, आपको डर है कि बॉडी में कहां पर जाके हिट करेगा. बिफोर दैट व्हाई नॉट वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस स्टडीज. हम लोग लिगैंड ले ले, उसके जैसा जो भी है वैसा ही एक रिसेप्टर हम लोग ही ले ले सीधा कंप्यूटर पर. बिफोर गोइंग इनसाइड द बॉडी हम लोग को ले ले डेटाबेस सीधा और उस पे सीधा हिट करा के देख ले हम लोग. ओके, अगर हम लोग को अच्छे इंटरेक्शंस मिल गए, फॉलो और घूमने का हजारों बार घूमने के बाद में लिस्ट पॉसिबल इंटरेक्शन जो भी मिनिमाइज एनर्जी का मिलने वाला है वहां पर बाइंड कर देंगे. बाइंड कर दिया तो एनर्जी मिल जाएगी हम लोग को. जितनी माइनस में मिल रही है बाइंडिंग एनर्जी, उतना हाईएस्ट डॉकिंग स्कोर. गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो सिंपल सा प्रोसेस है. इसके लिए अगर इसको और इफेक्टिवली करना है तो क्या करना है? एक्टिव साइट को डिफाइन करना है आपके प्रोटीन के. अगर डिफाइन हो जा रहा है उसी पे डॉकिंग करनी. ओके, सो परफॉर्मिंग द डॉकिंग फाइनली फॉर दिस स्टेज एंड फाइनली एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स. ओके, इसको सिंपल ऐसे ही ले लो. Target selection, target preparation, ligand selection, ligand preparation, performing docking, and finally evaluation of docking results. समझ में आ रही चीजें? बहुत सिंपल है. ये हमारा मेन फ्लो चार्ट है जो हमारा रहता है एक्चुअली. ओके, नाउ व्हाट आर द ड्रग टारगेट्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस? आइदर प्रोटीन ले लेंगे हम लोग, एंजाइम्स ले लेंगे, एंजाइम्स भी प्रोटीन ही होते हैं. ओके, कुछ ना कुछ हम लोग आयन चैनल्स ले सकते हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल जो भी हम लोग को मिलता है. हम लोग को क्या करना है? हम लोग को लिटरेचर सर्वे करना है. कोई बंदा बोल रहा है मेरे को एंटी कैंसर के लिए जाना है, तो एंटी कैंसर बहुत बड़ी स्टडी है. स्पेसिफाई करो कौन से कैंसर पे आपको काम करना है, उसके अंदर स्पेसिफाई करो कौन से टारगेट पे काम करना है. एक टारगेट या एक जो होते हैं ना पाथवे, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर पेन किलिंग इफेक्ट आप लोग को लग रहा है तो वहां पर दो पाथवे काम करते हैं. कौन से? साइक्लोऑक्सीजिनेस, लाइपोऑक्सीजिनेस, दो पाथवे यहाँ पर काम करते हैं. कौन से पाथवे से आपको जाना है? अगर साइक्लोऑक्सीजिनेस से जाना है तो कॉक्स 1 है, कॉक्स 2 है. डायरेक्टली कॉक्स 1 के इनहिबिटर्स लेने हैं तो ले लो भाई, या टारगेट लेना है तो उसको ले लो, या उसके अंदर भी सिग्नलिंग हम लोग को ना जीन्स या प्रोटीन्स मिल जाते हैं, उसको स्पेसिफाई अगर आप लोग को करना है तो वो आप लोग को डिराइव करने पड़ेंगे, उसको टारगेट बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस पर डॉकिंग करनी होगी. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम लोग को ये सारे टारगेट्स मिल जाते हैं. नाउ व्हाट आर द टूल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस डॉकिंग? तो अगर हम लोग ऑटो डॉक की बात करें, फ्रीवेयर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं.
यहाँ पर शॉर्डिंजर है, वी लाइफ है, मोलसॉफ्ट है, दुनिया भर के। बट फ्रीवेयर के लिए अगर हम लोग जा रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते 5-6 लाख के सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर में ऑटोडॉक ने अच्छा नाम बनाया। रिजल्ट्स बहुत इसके तगड़े हैं, बहुत सारे पेपर्स आप लोग को मिलने वाले ऑटोडॉक पर। ओके, तो व्हाट वी रिक्वायर्ड हियर, वी रिक्वायर्ड एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर विंडोज भी चलेगा, लाइनक्स भी चलेगा और iOS भी चलने वाला है। ओके, व्हाट आर दी सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड, तो आप लोग को जाके यहाँ पर पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, फॉर ऑटोडॉक MGL टूल्स भी लगने वाले ऑटोडॉक के वर्किंग के लिए, और यहाँ पर ऑटोडॉक खुद लगने वाला है। 3 चीजें याद रहेंगी। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स बताऊंगा मैं, जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं, जो अच्छा काम दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, काम इजी कर रहे हैं ना। देन प्रोटीन डिराइव करने के लिए या ड्रग्स डिराइव करने के लिए कौन से डेटाबेसेस हम लोग नेट पे जाके देखने हैं। वी रिक्वायर एक्चुअली प्रोटीन डेटा बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं RCSB। ये वेबसाइट ऐसी है, दुनिया भर के इसमें टारगेट्स अवेलेबल, जो लग रहे हैं आप लोग को, जो आप पेपर में पढ़ते हो डाल दो इधर, आप लोग को टारगेट्स बहुत सारे मिलने वाले। ओके, कॉक्स 1 के लिए बहुत सारे अवेलेबल होंगे, एक नहीं होगा कॉक्स 1 के लिए सिर्फ। तो आपको डिफाइन करना है इसको कि कौन सा वाला आप लेने वाले। ओके, ड्रग बैंक में जाके आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपको लाइगेंड लग रहा है वो यहाँ पे सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ओके, प्रोटीन ऊपर से करेंगे RCSB से, और लाइगेंड जो रहेगा ड्रग बैंक से लेंगे या पबकेम से आप लोग लेने वाले। 2 चीजें डिराइव करने वाली मैंने आप लोग को बता दिया, ये वेबिंचर है इसका। नाउ प्रोटीन प्रिपरेशन के कुछ स्टेप्स है जो ऐसे आप लोग को समझ में आने नहीं वाले, हम लोग को डायरेक्टली देखना पड़ेगा परफॉर्म करके, ताकि आप लोग को चीजें समझ में आए कि प्रोटीन को इंपोर्ट कैसे किया जाता है, देन उसको बनाया कैसे जाता है, सारी चीजें। देन इसके बाद में लाइगेंड प्रिपरेशन के कुछ स्टेजेस है यहाँ पर। ओके, इन दिस 2 स्लाइड्स आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों को क्या चीज देखनी है। यहाँ पर देखना ये है कि यू आर फाइनली व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर, यू आर कन्वर्टिंग योर प्रोटीन इनटू PDB-QT फॉर्मेट। आ रही बात समझ में? आप लोग चार्जेस लगाने वाले, डिस्क्रिप्टर्स लगाने वाले, ताकि वो एक एक्टिव फाइल बन जाए डॉकिंग के लिए। ओके, सेकंड वाले केस में भी क्या हो रहा है, सब चीजें कर रहे हो और फाइनली क्या हो रहा है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, PDB-QT एक्सटेंशन। तो अब की बार एक्सटेंशन क्या हो गया, PDB-QT। अभी तक क्या चल रहा था, PDB। ओके, अभी हो गया PDB-QT। दोनों चीज जब प्रिपेयर हो गई तो हम लोग को एक्टिव साइट को फिक्स करना है इसके मेथड से। ओके, ये इसके बाद में फिर फाइनली क्या होगा, वी आर गोइंग टू परफॉर्म डॉकिंग, और डॉकिंग जैसे ही हुई फाइनली एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। आ रही बात समझ में? एक बार डॉकिंग हो गई, रिजल्ट्स आप लोग को मिल गए, तो हम लोग को इन द फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हम लोग इसको ऐसे लिख जाते हैं रिजल्ट्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर और रॉबस्ट सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड फॉर रिजल्ट्स। इसका नाम है पाइमॉल, फ्रीवेयर है, डाउनलोड कर लिए, बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग इमेजेस हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड वन हियर इज वेरी गुड सॉफ्टवेयर, डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइजर, बायोलिया की तरफ से मिलता है ये सॉफ्टवेयर हम लोग को, और बहुत बड़ी ये सर्च इंजन है बायोलिया, जहाँ पर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल। ओके, और ऑनलाइन टूल एक है, अगर आप लोग प्रोटीन और लिगैंड को मिला के कॉम्प्लेक्स बना ले रहे हो और उसको सेव कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ PDB, आप क्या कर रहे हो, रिजल्ट को सेव कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ PDB, तो आप लोग यहाँ पर जाके अपलोड कर सकते हैं इसको। देखो, चूज योर फाइल, और यहाँ पर लिखा है PDB फॉर्मेट, सीधा डाल दो आपके रिजल्ट को, यहाँ पर अपलोड कर दो, क्लिक करो, वहां पर जनरेट हो जाएंगी आपकी इमेज। गेटिंग दिस पॉइंट? और ये सारी चीजें होने के बाद में रिजल्ट्स आपको कैसे दिखेंगे, रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पर देख लो, द मोर द वैल्यू इन नेगेटिव मींस द हाईएस्ट डॉकिंग स्कोर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर -9.8, ये जो स्टडी मैंने की थी मेरे PhD में, यहाँ पर मैंने कॉक्स 1 कॉक्स 2 पे किया था, कंपेयर कर रहा था मेरी ड्रग को किस पे ज्यादा हिट दे रही है, और यहाँ पर एक एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी लिया था। उसके लिए मैंने लिया था 14 अल्फा डीमिथाइलेस, जो अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस में काम आता है, ये टारगेट मैंने चूज किया था। ओके, सी द रिजल्ट्स हियर। तो ये कंपाउंड का -9.8 दिखा रहा है, किसी का -9.7 दिखा रहा है, किसी का -8.4 दिखा रहा है। बात समझ में आ रही? तो हाईएस्ट कौन सा होगा इसमें, जितना माइनस में हाईएस्ट है। ओके, ये वाले केस में भी देख लो, ये वाले केस में भी देख लो, एंड यू विल गेट योर इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। तो ये 3D इमेजेस आप लोगों को दिख रही, देखो कैसा लिगैंड बाइंड हो रहा है एक्टिव साइट में प्रोटीन के, इंटरेक्शंस हो रहे तो कौन से रेसिड्यूज से हो रहे, तो यहाँ पर ये रेसिड्यूज से देख लो, ये ल्यूसीन है, इसका नंबर दिया हुआ है, क्योंकि ये प्रोटीन की जो चेन होती है ना, ये बनी होती है अमीनो एसिड से, अराउंड 500-600 अमीनो एसिड्स होती है इसमें, कौन से वाले से मेरा लिगैंड हिट कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे नंबर भी दिख जा रहा है, हिस्टीडीन 207, ल्यूसीन 295। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये इमेज मुझे मिली है ऑनलाइन, है कि कुछ फाइल्स ऑलरेडी हम लोग को डाल के रख देनी होती है। जैसे ये 4 फाइल्स आप लोग को मिल जाएंगी ऑटोडॉक के साथ में, कौन सी है, ऑटोडॉक 4, ऑटोग्रिड, ओके,
और ये 2 फाइल्स KD वो वाली जो 2 फाइल्स आप लोगों को दिख रही है, ये आप लोग को मिलने वाला है। बटन दबा के बोला था मैंने PPT के अंदर कि आप लोग को NGL टूल्स डाउनलोड करके रख लेने हैं, पाइथन डाउनलोड करके रख लेना है, और क्या करना है आप लोग को यहाँ पर ऑटोडॉक को डाउनलोड करके रख लेना है। अगर कर लिया है आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर ये फाइल्स भी हम लोग को फोल्डर में डाल के रख लेनी है। 4 फाइल्स हम लोग को डाल के रख लेनी है। नाउ टाइम टू डॉक द कंपाउंड्स। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, COX-1 एंजाइम को टारगेट किया है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोसेस को सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी चेक करेंगे। हम लोग को पता होता है कि टारगेट क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन्स कौन कौन से यूज होते हैं, हम लोग को ऑलरेडी पता होता है। ओके, तो यहाँ पर आइदर COX-1 COX-2 हम लोग कोई एक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया ये COX-1 का 3KDA6, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ सबसे पहले। इसका नाम मैं दे रहा हूँ प्रोटीन, राइट। और लिगेंड्स मैंने क्या ले लिए यहाँ पर, ऑलरेडी जो इस पे हिट कर दे, एस्पिरिन, एंटी इंफ्लेमेटरी, और डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन और इंडोमिथासिन। तो 4 मेरे पास में लिगेंड्स है, और मेरे पास में क्या है, एक प्रोटीन है COX-1 एंजाइम। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑटोडॉक हम लोग खोल लेंगे यहाँ पर। दिस इज योर ऑटोडॉक इंटरफेस ऑफ योर ऑटोडॉक। यहाँ पर एक चीज करनी है हम लोग को, क्या करना है, हम लोग को ऑटोडॉक को अपनी डायरेक्टरी बता देनी है कि जब भी मेरे को कोई चीज लोड करनी है तो कहाँ से करेगा, ये बार बार मेरे को जाके ब्राउज नहीं करते बैठना है, मेरे को डायरेक्टरी इसको डिफाइन करके दे देनी है। ओके, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा फाइल में, प्रेफरेंसेस में, और सेट कर दूंगा यहाँ पर ये जो डायरेक्टरी दिख रही है ना, तो इसको मैं पहले हटाता हूँ। और यहाँ पर मेरी जो ये जो वर्ड फाइल है, ये जो फोल्डर है ना, इसको यहाँ पर लेता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, और यहाँ पर डायरेक्टरी को डिफाइन करके दे देता हूँ, Ctrl+V, डन। अब यहाँ पर मामले हमारे शुरू होंगे। नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू लोड दी प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो दिस इज माय प्रोटीन। This is in the form of PDB file. See this protein. बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है, मैक्रोमोलेक्यूल हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स के चेन होते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। ओके, दिस इज योर प्रोटीन मॉलिक्यूल। यहाँ पर अगर मैं इसको इलाज करके देख लूँ तो यहाँ पर सी इट इज हैविंग मैनी चेन्स ABCDEFG, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स डिराइव होती है एक्सरे स्टेलोग्राफी से, तो बहुत सारे इसमें मल्टीमर्स आ जाते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं, आइसोमर्स ही समझो एक दूसरे के, किसी एक को उठा सकते हैं। बट इससे पहले भी हम लोग क्या करते हैं, मोर प्रिसाइज वर्क करने के लिए हम लोग सारों पे एक ब्लाइंड डॉकिंग कर लेते हैं। बिफोर गोइंग फॉर पब्लिकेशन हम लोग को क्या करना है, कौन सी चेन ज्यादा इफेक्टिव है मालूम करने के लिए सबको लेना है ब्लाइंड, और उस पर डॉकिंग परफॉर्म करनी है। खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा आपका जो ड्रग है कौन सी वाली चेन पे जाके। फिर क्या करेंगे, हम लोग सारी चेन डिलीट करेंगे, वो वाली चेन को रख लेंगे। बट यहाँ पर सिंपल करने के लिए मैं ए ले रहा हूँ, चेन ए, तो मुझे ये बाकी चेन्स को डिलीट करना होगा बी, जिसको भी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ सिलेक्ट होते जा रही है। और यहाँ पर एडिट में जाके, डिलीट में जाके डिलीट सिलेक्टेड आइटम्स हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर सब डिलीट हो गए, बचा क्या, चेन बी, राइट, दिख रहा है सबको। अब चेन ए रह गई यहाँ पर और चीजें हम लोग को देखनी होंगी कि ये वाली जो चेन है इसमें कोई लिगेंड तो अटैच नहीं है। जो प्रोटीन्स हम लोग डिराइव करते हैं यहाँ पर नेट से, तो वहाँ पर ऑलरेडी उसमें लिगेंड अटैच्ड होती है, तो हम लोग को उसको निकालना पड़ेगा, और वो जहाँ पर अटैच है ना, वो मेरी बाइंडिंग साइट रहेगी। सिंपल, वो रहेंगी एक्टिव साइट वो वाले प्रोटीन की, तो मैं वो प्रोटीन्स भी देख लूंगा और एक्टिव साइट उसको डिफाइन कर दूंगा। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो लिगेंड निकालूंगा, अपने लिगेंड्स को वहां पर जाके डॉक करूंगा। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि नेट रहता तो मैं आप लोग को सीधा उसमें दिखाता था, करेंगे बट एक डॉकिंग कर लेते सबसे पहले। यहाँ पर देखो ये इतने सारे अमीनो एसिड्स की चेन है, और इसको लगे हुए क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर कैसे दिखेंगे हम लोग को, सीधा ये फाइल के अंदर सेव। और अब मैं फोल्डर में जाके देखता हूँ, तो यहाँ पर पहले क्या था, प्रोटीन,
ये वाला पीडीबी और नीचे क्या है ऑटोडॉक स्ट्रक्चर मींस पीडीबी क्यूटी फाइल। तो यहाँ पर आपके सामने प्रोटीन यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ पर ड्रग्स को भी इंडिविजुअली जाके मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, एक खाली ड्रग दिखाता हूँ, बाकी एक टूल बताता हूँ जो आपको ये सारी चीजें करके दे दे। ओके, तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ लिगैंड में, इनपुट कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, एक्सटेंशन में से यहाँ पर मुझे डिफाइन करना होगा ऑल फाइल्स, और यहाँ पर एस्पिरिन ले रहा हूँ मैं। ओके, तो ये दिख रहा है मुझे एस्पिरिन। एस्पिरिन पे करना क्या होगा, मुझे लिगैंड में जाना है। अब मैं डिस्क्रिप्टर्स देना शुरू कर रहा हूँ, चार्जेस लगाना शुरू कर रहा हूँ। ओके, चूज रूट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जा रहा हूँ, डिटेक्ट रूट कर रहा हूँ, टॉर्जन्स दे रहा हूँ उसको, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, इसको फिलहाल एज इट इज लो आप लोग। और फाइनली जैसे ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फाइनली मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेव कर सकता हूँ। तो आउटपुट क्या रहेगा इसका, सेव एज पीडीबी क्यूटी, ड्रग का नाम है एस्पिरिन, नीचे क्या लिखा है पीडीबी क्यूटी। तो यहाँ पर दो चीजें मेरी, लिगेंड प्रिपेयर, प्रोटीन प्रिपेयर। नाउ देयर इज द टाइम टू परफॉर्म डॉकिंग। अब ऑटोडॉक पे अगर हम लोग काम करते हैं, देयर इज वन रेस्ट्रिक्शन, व्हाट, एक टाइम पर सिर्फ एक ही ड्रग को हम लोग या एक ही लाइगेंड को हम लोग डॉक कर सकते हैं। अब मेरे पास में कितने हैं, चार है। अगर मैं 10 लेके आऊँ तो 10 बार तो रन नहीं करते बैठूंगा मैं, 10 बार ये पीडीबी क्यूटी में कन्वर्ट नहीं करते बैठूंगा। इसके लिए एक टूल है जिसने क्या किया है, फायदा कर दिया हम लोग का, वो है ऑटोडॉक वीना। वीना जब आया ऑटोडॉक वीना, तो वहां पर लाइनेक्स की लैंग्वेज हम लोग स्क्रिप्ट लिख के वहां पर हम लोग डिफाइन कर देते फोल्डर, तो सारे लिगेंड्स को उठा लेते और एक साथ 10, 20, 15,000 डॉकिंग कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? बट लाइनेक्स को पे काम करना इट्स वेरी टीडियस और किसी को पसंद आने नहीं वाले। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारी चीजें, स्क्रिप्ट की शॉर्टकट फाइल आपको मिल जाएंगी, आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं। देयर इज वन टूल व्हिच इज नोन एज पायरेक्स। पायरेक्स ने ये काम बहुत इजी कर दिया। Pyrex is a graphical user interface of your Vina plus OpenBabel. OpenBabel is a software जहां पर वो बहुत सारी फाइल्स को दूसरे फाइल्स में कन्वर्ट करा के दे देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास में पीडीबी फाइल है, आप डायरेक्टली सोच रहे हो पीडीबी क्यूटी में कन्वर्ट करना, यहाँ पर इनपुट डाल दो फाइल, एक्सटेंशन दे दो, पीडीबी क्यूटी में कन्वर्ट करना है, डन। आपको एसडीएफ में कन्वर्ट करना है, सीडीएक्स फाइल को यहाँ लिख लो, एसडीएफ का एक्सटेंशन दे दो उसको, डन। आउटपुट फाइल डिसाइड कर दो कि कहाँ पर सेव करना है। तो OpenBabel हर चीज करा के दे देता है। यहाँ पर मैं उसको दिखाऊंगा नहीं, बट लेट्स सी द इंटरफेस ऑफ योर पायरेक्स। पायरेक्स में क्या करेंगे, पायरेक्स में हम लोग प्रोटीन डाल देंगे, लाइगेंड्स डाल देंगे और डॉकिंग करेंगे। पायरेक्स में हम लोग डॉकिंग करने वाले। ओके, तो सी हियर, पायरेक्स में भी हम लोग को क्या करना होगा, जाके प्रेफरेंसेस में जाके हम लोग को डायरेक्टरी दे देनी होगी इसकी। तो सपोज करो कि पायरेक्स में हम लोग यहाँ पर वर्क स्पेस की डायरेक्टरीज को दे देते हैं, हम लोग को क्या रखना है। तो मैंने दे दिया फोल्डर का नाम, ओके कर रहा हूँ। अब मुझे लोड करना है मॉलिक्यूल, तो यहाँ से उठाना चाहिए इसको, फाइल लोड मॉलिक्यूल। पायरेक्स में प्रॉब्लम आती ही है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसके लिए कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके इसको रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से प्रोटीन लूंगा, कौन सा वाला, जो मैंने ऑटोडॉक में प्रिपेयर कर दिया, पीडीबी क्यूटी फाइल। ओके, तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, ये दिस वन। मैंने इसको ओपन कर दिया, मुझे इसको असाइन करना होगा कि दिस इज माय मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये डायरेक्टरी में बहुत सारे ऑलरेडी प्रोटीन्स मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पर कौन सा वाला मुझे लेना है, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ पर प्रोटीन में जा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज माय मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे ही मैं इसको डिफाइन कर दूंगा, ये ऑटोडॉक में आ जाएगा, नीचे दिख रहा है दिस इज माय प्रोटीन। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे जो मॉलिक्यूल से मुझे डालने, कौन से ड्रग्स डालने मुझे, तो मैं नीचे जाऊंगा OpenBabel में, नीचे दिख रहा है ये कर्सर, देख लो दिख रहा है। OpenBabel में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं इंडिविजुअली मेरे ड्रग्स को डालना शुरू करता हूँ। कंट्रोल डी करता हूँ और सबसे पहला लूंगा एस्पिरिन, सेकेंड वन इज डाइक्लोफिनेक, थर्ड वन इज इंडोमिथासिन, फोर्थ वन इज आइबुप्रोफेन। डन। एक साथ सबको मुझे कन्वर्ट करना है पीडीबी क्यूटी में। इट्स वेरी सिंपल कि किसी एक पे क्लिक करूं और राइट क्लिक करने के बाद में सबसे पहला काम क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा मुझे एनर्जी को। तो मिनिमाइज ऑल करता हूं, एक्सटेंशंस लग गए यहाँ पर, डन। यहाँ पर मैं एक साथ सबको सिलेक्ट करूंगा और क्या करूंगा, कन्वर्ट ऑल टू ऑटोडॉक पीडीबी क्यूटी फाइल, क्लिक कर रहा हूं मैं, डन। सब चीज एक साथ पीडीबी क्यूटी में कन्वर्ट हो चुकी है, प्रोटीन भी हो चुका है। नाउ देयर इज द टाइम टू परफॉर्म डॉकिंग। तो वीना विजार्ड में जा रहा हूं मैं, दिख रहा है ये फर्स्ट वन,
वीना पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पर मुझे स्टार्ट करना है, डॉकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सिलेक्ट करना है प्रोटीन को, डन, ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी। और ऊपर से मुझे क्या करना है, देखो बहुत सारे लिगेंड्स यहाँ पर ऑलरेडी है, मुझे यहाँ पर मेरे ये 4 को पकड़ना है, मतलब कंट्रोल ये हो गया और ये वाला भी हो गया। देखो 5 सिलेक्ट हो चुकी है, फॉरवर्ड करना है बट फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, फिर से करता हूँ मैं। ओके डन, स्टार्ट फॉरवर्ड। अब ये पूछ रहा है कि ग्रिड बॉक्स आपको कहाँ पे सेट करना है। अभी हमने एक्टिव साइट को निकाल के रखी नहीं है। ओके, लिटरेचर से मिल सकती है, बहुत सारे तरीके निकालने के, और कास्ट पी से मिल जाएगा, लिक प्लस से मिल जाएगा, बहुत सारे टूल्स भी है। ओके, बट हम लोग कर लेते परफॉर्म ये ब्लाइंड डॉकिंग। मैं पूरा सेट कर रहा हूँ प्रोटीन के अराउंड बॉक्स, और मैं डिफाइन करके दे रहा हूँ कि बाबा पूरे प्रोटीन पे डॉकिंग करके देख ले। डन हो गया पूरा कवर। यहाँ पर अब आपको दिखाएंगे परसेंटेज वाइज। ये देखो पहला वाला स्टार्ट हुआ है, रनिंग है, और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ना तो इसका परसेंटेज दिखा देगा कितना हो रहा है। अभी एनालाइज कर रहे हैं। देखो स्टार्ट हुआ है 10%, 20, 30। रैम काफ़ी अच्छा है इसका, 8 GB है, बहुत फास्ट हो रही है चीज़ें। डन, एक हो गया, फिनिश। सेकेंड वन, मॉलिक्यूलर डॉकिंग। Sir for showing us a presentation on molecular docking. It was very easy to follow, and I'm very thankful that he used free softwares to show us. Usually these software are very expensive for us. So through these softwares we can do molecular docking on our own, and I expect you guys to practice this molecular docking technique, and then after you can put it in your CV, and this will be a plus point for you as well. So molecular docking is often a final step before proceeding to in vivo in vitro research, as Dr. Yasser has said, and most of the research papers include this before they proceed to in vitro or in vivo research. So molecular docking has been at the forefront of computational biology, and we also use different programs such as AlphaFold to determine protein folding as well, and different softwares such as Magenta to predict computationally predict different drugs for our ligands as well. So these are different softwares that we need to understand, and the software he showed Pyrex, that was very useful. I didn't know that as well because I used to do code in Linux and I hated Linux. It is very tedious to do coding in Linux. So that is very. I'm very thankful for Dr. Yasser sir, because I learned. I also learned today that Pyrex is also a useful thing. So I'm very thankful to Dr. Yasser Kazi sir for showing us that, and I hope you guys include it in your CV after practicing it a couple of times, because you don't want to include it in your CV if you don't want to know it better. So I would like Dr. Nikhil sir to felicitate our speaker with a certificate of appreciation.